So, just the whole idea about Swaraj Jail University, just Gandhi talk about Swaraj. So I'm just taking you for to the journey of my first day inside the jail. जब मैं पहली बार जेल में गया, जब मैं पहली बार जेल में घुसा, वहाँ पे just intention was to connect the heart. Just मैं लोगों से मिल रहा था, और जब मैं पहली बार एक भाई से मिला, 25 साल का लड़का, बहुत ही गुस्से में मेरे सामने आया, मेरे को बोल रहा था, मैं यहाँ से भी मर गया हूँ और यहाँ से भी मर गया हूँ, कहाँ से जिंदा करेगा? And that was the reflection of our collective failure as a society, as a justice. And that broke my heart. And I think that shake my heart. And I think that was my first step for awakening. When you shaken within yourself, then the real awakening start. So then we didn't know, and that just instant remind me about Gandhi ji. गांधी जी बोलते, किसी ने गांधी जी को पूछा था कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर फॉर ह्यूमैनिटी, आपका सबसे बड़ा डर क्या है भविष्य को लेके, ये ह्यूमैनिटी को लेके? तो गांधी जी का सिंपल रिस्पॉन्ड था, हार्टलेस इंटेलेक्चुअल. So all the institute, all the system are preparing us for heartless intellectual. So what can be the new game can be played inside the jail system? So the whole idea, and then I found the answer with the Vinoba's wisdom. विनोबा जी बोलते थे, कोई भी चीज़ को समाधान करना है तो तीन चीज़ है, या तो कत्ल से हो सकता है, या तो कानून से हो सकता है, या तो करुणा से हो सकता है. एंड देन वी चूज करुणा, कि हाउ वी कैन क्रिएट अ स्पेस ऑफ लव, how we can create a space of compassion where people can find, reconnect with their own gift, their own self, reignite their self-esteem. They become social leader. They can dream about to become social leader. They can dream about to become entrepreneur. I love this word entrepreneur because which come from antarprerna. So where they can connect with their own antarprerna. So this is the journey which keep going on, like since 2018. And then my belief, since 2018 become more and more deeper. This Vinoba's wisdom, the most powerful way is compassion, because of Swaraj Jail University, I know at least 30, 40 people get bailed out. With the judicial system, because judicial system itna lamba hai, 4, 5, 10 saal trial chalte rehte hai. Once they come, they reconnect, they find their own passion, they perform their passion. And so many, sometimes they perform in the high courts and with the judge and with the lawyers, and they got bailed out. And so many people are still stuck in the judicial trial. So I'm saying, like, we need both. I'm not saying like one is better than other. Just depend, like, what is your response? What is your immediate response? What can be your one fearless experiment of love? And we have here some musical band जो आज आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे. यहाँ पे शोएब है, सुनील है, रमेश है. दे वर एक्स इनमेट. मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट में एलुमनाई होता है, हमारे वहाँ ऑल मुनी है. So this is Muni who just found their own wisdom through their life journey with their own like a heart. So they will perform. You will get chance more to share about listen about their life story. So just expressing my deep gratitude for saying yes to this opportunity, saying yes to the possibilities. We are not trying in Swaraj Jail University, not trying to fix any system, not trying to give any solution, just trying to, like how we can meet each other with the full heart, how we can create possibilities. And I'm thank you for each one of you for holding that love, holding that possibilities, especially in this, and signing up and say yes, especially in the time of AI, saying yes for your eye. Just find your harmony with your eye. So once you find your harmony, you not harm any. So thank you for listening with so much love. And I just invite my Naya Savera team, Sunil, Shoaib, Ramesh. We have Ashish also. He's also like a filmmaker. They all are ex-inmate, alumni, all Muni. So you will listen their life story, their music.
चेक हेलो हेलो। हेलो, सबको नमस्ते सलाम। तो ये गाना है आशा है, तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ में गाओ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो वार वार, कर दरियाओं को आर पार। आशाएं आशाएं आशा तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं के ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खेले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खेले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू। तो ये सॉन्ग है कबीर मत कर माया को अहंकार। हम लोग साथ में गाएंगे। तो शुरू करते हैं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। हो कायागार से काची रे, जैसे ओसरा मोती जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। काया तेरी कार से काची। ऐसा शक्त था महाराज जिनका, मुल्ही को महराज जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी। हो जिन घर झूलता हाथी रे, जैसे ओसरा मोती जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गयो सिंदड़ारो तेल बिखर गयो, सब निच खेल बुझ गई दिया की बाती, बुझ गई दिया की बाती। हो बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओसरा मोती जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा
झूठा माई थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठी कूटता छाती, झूठी कूटता छाती, ओ झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। हो पुलियाँ भवानी हो नाथ, गुरु जिन सर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी, हो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। तो सबको नमस्ते। मेरा नाम शोएब है और मैं वैसे मंदसौर का रहने वाला हूँ, और मेरी जर्नी आपको थोड़ा बताता हूँ मैं। वैसे मुझे तो काफ़ी मतलब मैं तो कहीं फंसा वसा नहीं हूँ जेल वेल में, बाकी बट मैं ना पहले क्राइम ही करता था। मुझे शौक ही था बचपन से, एक मुझे गैंगस्टर बनना है। मेरा एक ड्रीम था, एक मुझे एक बार जेल देखनी है, और मैंने 2 बार जेल देख के आ गया हूँ मैं। और फिर मैंने सोचा कि मुझे गैंगस्टर तो खैर बनना ही। एक बार मैं जेल जाके आया था तो लगभग मैंने 4 महीने जेल काटी थी, तो मुझे कुछ जेल समझ में आई नहीं थी, क्योंकि मुझे वही समझ में आ रहा था बाहर निकल के क्राइम ही करना था। और जेल में निकल गया था अंदर, और मैंने गैंग बनाई थी छोटी सी, और जैसे मेरे दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह बन गए थे, तो फिर हमने बाहर निकल के क्राइम शुरू करा। मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ बड़ा नाम करना है, क्योंकि काफ़ी लोग थे, बड़े बड़े गैंगस्टर थे जेल के अंदर, तो उनको देख के मुझे यूँ लगता था कि मैं भी कुछ इनके जैसा करूँ ताकि मेरा भी नाम चले एक। तो फिर मैंने जेल से बाहर निकला 4 महीने बाद, तो फिर लूटपाट करी। एक पुलिस वाला था, उसका सीए था, वो हेड कांस्टेबल ऐसा कुछ था, तो उसको हमने मारा था। उसके बाद 7.5 लाख की लूट हुई थी हमारी। तो फिर हम ऑन द स्पॉट पकड़ा गए थे वहाँ। हाँ, ऑन द स्पॉट पकड़ा गए थे। तो फिर उसके बाद मुझे जेल हो गई थी। जेल हो गई थी तो काफ़ी उस टाइम मैंने 4 महीने काटे थे। फिर उसके बाद जेल हुई तो फिर मुझे लगभग मैंने 1 साल हो गया मुझे, और मुझे थोड़ा लगने लग गया जेल क्या है। तो मैं कभी कभी तो रोता भी था अंदर, मतलब किसी को बोलता नहीं था, कोठड़ी में था अकेला, रोता था। और म्यूज़िक की भी आवाज़ सुनाई देती थी मुझे वहाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंटल वगैरह सारी चीज़ें भैया है, मनीष भैया, उन्होंने अवेलेबल करवा रखी है ताकि कैदी सारे सीखे वहाँ और अच्छा नाम करे। तो उस हिसाब से फिर मैंने ना मुझे काफ़ी घुटन हुई जेल के अंदर, और मैं बहुत परेशान हो गया था। 1 साल काफ़ी परेशान हुआ। फिर मैंने योगा हॉल ज्वाइन करा जहाँ म्यूज़िक वगैरह होता है। तो वहाँ एक भैया थे, प्रियांक भैया, हमारे वहीं सीखा थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनसे, ये गिटार बजा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ सुनाऊँ इनको। तो भैया को बोला, भैया मुझे थोड़ा सा कुछ गाना है, तो गिटार प्ले करोगे क्या? तो उन्होंने बजाया और मैंने जैसे गाया तो वो स्केल मैच हो गया मेरा। तो मुझे यूँ लगा यार मैं भी कुछ गा सकता हूँ क्या। तो फिर मैंने उस दिन से सोच लिया कि यार मुझे कुछ सीखना चाहिए यहाँ क्या। तो फिर मैंने लगभग 1 साल म्यूज़िक सीखा। फिर उसके बाद मेरी बेल होने वाली थी, तो फिर मैंने घर वालों को मना कर दिया कि 1 साल और जेल में रहूँगा मैं। हाँ, घर वालों को मना कर दिया। तो घर वाले बोल रहे ये क्या सिस्टम है, मतलब जेल के अंदर क्यों रह रहा है तू, या तो फिर बिगड़ रहा है तू, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब फ़ोन वगैरह वो सारी चीज़ें थी अंदर। तो घर वालों को भी बोला 1 साल और जेल में रहूँगा मैं। तो मम्मी भी थोड़ी कंफ्यूज थी मेरी। तो फिर मैंने जेल में 1 साल और वक्त बिताया, और
थोड़ा बहुत अच्छा सीखने लग गया और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा परफॉर्मेंस के लायक बन गया हूँ। उसके बाद फिर मेरी बेल हो गई थी, बेल हुई, फिर उसके बाद शिक्षांतर से जुड़ा मैं। तो शिक्षांतर वालों ने काफ़ी मेरा सपोर्ट दिया और जिस तरीके से घर वाले मुझे पहले देखते थे ना, सारे डरते थे, घर वाले मोहल्ले वाले सब डरते थे या तो बदमाश है। और अब उनका देखने का जरिया कुछ अलग ही हो गया मुझे क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। जो पहले मेरी जो लाइफ थी वो काफ़ी डर लगता था मुझे भी, मैं कितने लोगों को मैंने मारे कूटे तो वही है, अभी मैं हूँ आपके सामने। तो बस ये काफ़ी कुछ मैंने चेंज करा है खुद को मैंने, और मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ डीकेन भैया है, मनीष भैया है, इन लोगों ने मतलब इतना सपोर्ट दिया ना कि आज मैं इस मंच पे हूँ तो उन लोगों की वजह से हूँ मैं। बाकी मैं लाइफ में बहुत बिगड़ जाता और बाहर निकलने के बाद फिर मैंने खुद ने कांटेक्ट बनाए और शिक्षांतर वालों ने मुझे सपोर्ट दिया और काफ़ी शोज़ वगैरह उदयपुर में भी मैंने करे और अभी आपके सामने करा और अभी थोड़े दिन बाद ही मैं मुंबई करके आया शो। हाँ तो थैंक यू, बस यही था मेरा। अभी और थोड़े दिन बाद मेरी साल भर बाद शादी भी हो जाएगी और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो हमने सीखा है, तो मैं चाहता हूँ जो जेल यूनिवर्सिटी, हर जेल के अंदर अगर ये चलेगा तो काफ़ी लोग, मुझे लगता है हम आपके सामने इस तरीके से हैं तो वो लोग भी काफ़ी कुछ चेंज हो सकते हैं और होंगे। लोग बागों को लगता है कि जेल बहुत खतरनाक है, खतरनाक। जेल का मतलब होता है सुधार गृह। बंदे को सुधारने के लिए जेल में भेजा जाता है। तो बस मैं भी सुधर गया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, बस ये देख लो आप ठीक है, थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई डांस करना चाहता तो प्लीज आगे आ जाए, प्लीज आ जाइए आगे। हाँ बिल्कुल सर, आप भी आ जाइए आगे। मैं काफ़ी मज़ा आएगा सबको साथ में। तो ये ओल्ड मैशअप है, साथ में गा भी सकते हैं। सब साथ में गाएंगे है ना, सब साथ में एंजॉय करेंगे बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि सब जने है ना बहुत मतलब अलग ही घूम रहे, क्या सब अपनी धुन में घूम रहे, तो थोड़ा यूँ लगना चाहिए कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ वे ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, ये अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये शाम मस्तानी मदहोश
होश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय मैं तेरे कुर्बान, छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। ओ इन अदाओं का ज़माना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, दीवाना क्या कहेगा। किसी ना किसी से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी ना किसी से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ गाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ गाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठ गाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ गाट का पानी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 हे 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 ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम मुझसे शिकायत होगी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे
के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये गाना है एक कवाली है दमादम मस्त कलंदर। हाँ तो एक बार प्लीज़ मैं सबको चाहता हूँ कि ये भैया एक बार स्टोरी बताएंगे तो ज़रूर सुनो एक बार। मैं प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुनील है और मैं बिल्कुल छोटा था तभी मम्मी पापा ऑफ हो गए थे नहीं, फैमिली में कोई संभालने वाला नहीं था। तो तभी से बस भटक गया था रास्ते के। 10 साल की उम्र में अगर बच्चा घर से चला जाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से रहे होंगे ट्रेनों में। और उस तरीके से हम लोगों ने रोड पे भी कभी कभी तो ऐसे भूखा भी रहना पड़ता था, 10-10 15-15 दिन के खाना मिला नहीं मिला, उस तरीके से भी हम लोगों ने ज़िंदगी जी। तो वो उस समय क्या है ना, फ्रेंड सर्कल जो था तो वो वैसे लोगों में ही हुआ, क्योंकि शुरू से रोड पे रहते हुए तो लोगों को नशे की धुन में और ऐसे लोगों को देखते थे, फेस करते थे कि यार ये सही है इनका, इस तरीके से ये पेट भरते हैं, ये काम करते हैं। तो वैसा फ्रेंड सर्कल भी मैंने फिर वैसा ही बना लिया कि चलो ये सही है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, इसमें चले जाओ। तो वो पैसे कमाना है और खाना पीना और बस उस चीज़ में रह गए। फिर धीरे धीरे मैंने 5-6 साल तक ये काम किए दोस्तों के साथ मिलके। फिर मेरे को लगा कि यार अब बड़ा करना चाहिए, कुछ ऐसा करे कि ठीक है फिर थोड़ा टाइम लेके फिर करेंगे ऐसा। सोच ही रहा था, उसके बीच में मेरे फ्रेंड हैं तो हम लोग, उन्होंने पहले ही प्लानिंग करके कुछ बड़ा कर लिया। तो उसमें मैं नहीं था इन्वॉल्व, था बाकी मैं कहीं गया हुआ था और जैसे ही आया तो मुझे भी पुलिस वालों ने उठा लिया कि बोले कि चलो, फिर ले गए थाने और पूछताछ की, जेल भेज दिया। तो क्राइम तो किया था तभी हम लोग अंदर गए। वहाँ जाके डिप्रेशन में, सिस्टर है मेरी, 2 सिस्टर भी हैं, तो उनका ज़्यादा टेंशन होता था मुझे कि यार मेरी बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, तो वो कैसे रह रहे होंगे मेरे बिना। मैं तो चलो रह लूँगा यहाँ पे जेल में जैसे भी। फिर डिप्रेशन 1 साल भर तक मैं ज़्यादा ही डिप्रेशन में हो गया कि यार क्या करूँ ऐसा जो मैं समाज में रिटर्न जा पाऊँ मैं और लोगों को फेस कर पाऊँ कि मैं नहीं हूँ वैसा, बस गलतियाँ थी जो मुझे शिक्षा नहीं मिली उस वजह से मैं ऐसे क्राइम में चला गया। बाकी अगर मुझे अच्छी शिक्षा मिली होती तो मैं नहीं जाता। तो वैसे ही जेल में गया, फिर ऐसे ही डिप्रेशन में रहता था और योगा हॉल में म्यूज़िक चलता था, तो बेरिंग में सुनते सुनते 3-4 दिन सुना। फिर मैंने कहा यार योगा हॉल चलते हैं एक बार, म्यूज़िक कहाँ बज रहा है। जेल में म्यूज़िक मतलब बहुत कम सुनने को मिलता है, वैसे वहाँ सुना मैंने, क्योंकि मेरी जेलें ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो मैं उदयपुर पहुँचा, उदयपुर में मुझे म्यूज़िक मिला और वहाँ जाके फिर मेरे एक दादाजी थे, मेरे जो दादाजी थे वो तबला बजाते थे। तो घर में तो कभी नहीं सीखने को मिला, कि घर में थे ही नहीं, फैमिली में कोई था ही नहीं, तो सीखने को नहीं मिला, छोटा था तब देखता था। फिर दादाजी जैसे ही एक बुजुर्ग थे मेरे गुरुजी परमेश्वर व्यास जी, जो तबला बजा रहे थे वहाँ पे। तो मेरे को यार लगा कि मुझे तबला सीखना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने उनसे बात करी कि क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या तबला सीख सकता हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, आओ। फिर उसी बीच मेरी डिकेन भैया, मनीष भैया, प्रियांक भाई, सबसे मुलाकात हुई। मुझे फिर उन्होंने एक चीज़ बोली मुझे कि क्या, किस वजह से तुम ये चीज़ कर रहे हो, क्या क्या मिलता है इस चीज़ में। तो हमारा ये था कि हमें नाम मिल रहा है, कि नाम मिल रहा है इसलिए हम लोग ये क्राइम कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ। बोले कि
ऐसा क्या नाम मिल रहा तुम्हें, क्या तुम्हें पता है लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, बताओ थोड़ा। तो मैंने बोला यही है कि वो नाम किस चीज़ में चाहिए आपको, अच्छा नाम चाहिए या बुरा नाम चाहिए। तो मैंने कहा नाम तो कोई अच्छे से ही लेगा तो ही अच्छा लगेगा, बुरा अगर बोलेगा तो कौन सही लगे। फिर वो बोले कि ऐसा कुछ करो ताकि लोग भी तुम्हें पीठ पे भी बोले तो वो अच्छा ही बोले, बुरा कभी नहीं बोले। तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारे डर से भी बोल देंगे कि अरे यार ये बंदा सही है वो सब कुछ, बाकी पीठ पीछे तुम्हारी गालियाँ ही होती है हमेशा। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी और फिर हम लोगों ने ज्वाइन किया। मेरे था भी नहीं कि मैं बाहर जाऊँ जेल से। मैं बैंड आउट ऑफ द बॉक्स हमारा जेल बैंड है और नया सवेरा बाहर का बैंड है। तो आउट ऑफ द बॉक्स में ज्वाइन हुआ, फिर मैं बाहर भी परफॉर्म करने के लिए गया और जेल से हम लोग ने परफॉर्म करते थे बाहर जाके। फिर धीरे धीरे जमानत हुई, फिर घर पे रहे। मैंने वापस शिक्षांतर गया और शिक्षांतर ज्वाइन किया, वहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने नया सवेरा, जो कि हम लोग करते हैं कि जो भी बाहर निकल के आ रहे हैं वो नया सवेरा में आए और हम लोग बस इसी तरह आपका प्यार और बस ये सपोर्ट मिलता रहे इस तरह। थैंक यू। तो प्लीज़ थोड़ा सा तकलीफ होगी वापस उठ तो ये गाना है दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर शकी शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर शकी शाहबाज कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पजवा में बालन अहियो बला झूले लालण, पजवा में बालन अहियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर शकी शाहबाज कलंदर। हिंद सिंध पी रहा तेरी खेरा होवे, हिंद सिंध पी रहा तेरी खेरा होवे, नाहड़ बजे गड़ी यहल बला झूले लालण, नाड़ बजे गड़ी यहल बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर शकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर शकी शाहबाज कलंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Big rounds for Shoaib, for Sunil, थैंक यू। and for Ramesh. We'll have 1 minute, exactly 1 minute to hear from Ramesh. Okay, exactly 1 minute. जी मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान से उदयपुर का रहने वाला हूँ।
मेरा भी मतलब कुछ ऐसे ही शौक मौज थे, मतलब आराम से ऐशो आराम करना, पैसे कमाना, नाम कमाना। इस चक्कर में मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया, मतलब बड़े बड़े जो गैंगस्टर लोग थे उनके चक्कर में। तो फिर वो लोग ऐसे लोग थे जो आए दिन क्राइम से ताल्लुक़ रखते थे। तो फिर ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद मैं भी उन लोगों के साथ आए दिन क्राइम करने लग गया था। और क्राइम करते करते मैंने जीवन में इतना बड़ा क्राइम करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों की हत्या तक करना स्टार्ट कर दिया था। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। और उसके जाने के बाद क्या, मैं जेल में चला गया था। जेल में चला गया तो वहाँ 1-2 साल तो मैंने ऐसे तैसे निकाल दिए थे। उसके बाद मेरे को वहाँ अंदर घुटन सी महसूस होने लगी। फिर उसके बाद मैंने क्या, फिर ऐसा डिप्रेशन में जाना धीरे धीरे ऐसा होने लगा। तो फिर मैंने कुछ लोगों से वहीं सुना था, मतलब यहाँ म्यूजिक क्लास, योगा क्लास चलती है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरह से मैं रहूँगा जेल में तो बाकी मुझे बहुत लंबे समय तक जेल काटनी है, तो मैं कैसे काटूँगा। तो फिर उसके बाद मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया। तो फिर जिस दिन से म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया तो उस दिन से मुझे लगा कि जीवन को बल्कि ऐसे नहीं, बल्कि लोगों में डर फैला के नहीं, बल्कि प्यार फैला के भी जिया जा सकता है। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो मैं शिक्षांतर संस्थान का करता हूँ, जो उन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, जो आज मैं तुम्हारे सामने इस मंच पे खड़ा हूँ, इस काबिल बनाया। और मैं क्या, बहुत बड़े बड़े केसों में गया तो मेरे को वहाँ जैसे बड़े केसों में सज़ा लगी, बड़ी केसों में आजीवन सज़ा, आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सज़ा लगी थी, जिसमें मैं काफ़ी समय जेल में यानी कि 7 साल बिता के आया हूँ। अभी जस्ट 2 महीने पहले ही छूटा हूँ मैं जेल से। और धन्यवाद। You have one more song? तो ये वाला सॉन्ग है, काफी अच्छा है, तेरी दीवानी, है ना। हेलो चेक। तो एक बार सब साथ में स्टार्ट करते हैं इसको। प्रीत की लत मोह ऐसी लागी कि हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी। मोह सुध बुध ना रही तन मन की, हो ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हरी मैं दिल हरी, हरी मैं दिल हरी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी हेलो हेलो, क्या बात है। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले,
बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। What a vibe, man. What a vibe. वैसे अभी लंच करेंगे, उसके बाद भी अपन बाहर कर सकते हैं। Thank you, thank you, thank you. Thank you. थैंक यू थैंक यू। Just 30 seconds. I am Sampath, the DG Presence Telangana. I always believed that this is my fundamental, I truly believe this. अच्छे आदमी से कुछ होने वाला नहीं है. Positive person is always positive. There is no change in energy levels. But when a negative person turns positive, -1 to +1, there is double energy. You see this hall? So, as a prison officer, if I change, if I give an opportunity for one person to change, that's my life purpose is served. Hats off to Dekan and Manish, who are giving opportunities to the prisoners and opening the new doors for them. Hats off, and also to the jail staff in Udaipur Central Jail. And translators, they're doing a pretty good job, right? Hats off. So I request the team, Raj Raat ko closing. Yes. Thank you.